42 people, ठीक है. I will present my screen. Okay, great. ठीक है, तो I will just go over HackerRank एक और बार. I think a few of you have tried HackerRank, but I'll just go over it एक बार फिर से because this is a great platform. मैंने जब start किया था programming सीखना in my I think 11th 12th first year of college, so this was one of the places that I really found it was very enjoyable for me personally. So I would highly recommend you try this out. There are other platforms like this. Some are more advanced, some are a little more complicated, but this one is the most beginner friendly, I would say. And even if you are a beginner or an intermediate level or even somewhat of an expert, you can still use this platform. So I'll just create a new account because मेरे पुराने account में already कुछ problem solve करके रखी हुई है मैंने. So you can just go to sign up and code and I'll create a new account. So I'll just write Davish and email I will use. So this is a general tip for you. अगर आपको कोई website मिलती है which requires you to provide an email to register, and अगर आप नहीं चाहते हो कि you want to give your real email, you can go to this website called tempmail.org. It's basically a disposable email. तो यहाँ पे आपको एक random सा email दे देंगे वो आपको, and you can just paste it there. And अगर कुछ verification code वगैरह भेजेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, so you don't have to use your real account at all. So I'll just write some password here, and I will create one second, full name. Okay, and I'll create an account. And yeah, ठीक है. And then it will ask me, I am here to prepare for job interviews or learn and compete with others. I don't think this matters too much. You can select either. I just select learn and compete with others. I am a student, let's say, and I will graduate in कुछ भी लिख दो. I mean, I don't know why it's asking me this. Let's go. ठीक है, तो यहाँ पे since we are focusing on Python, we will look at that section only, but इसके अलावा भी काफी सारे sections है. If you are interested in any of these other languages या फिर कोई और technology आपको देखनी है, तो you can go over this here. But this is all focused on programming. तो यहाँ पे for example mathematics का एक section है. So ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ math पढ़ाते हैं. They actually talk about mathematical problems, but they expect कि आप उसको किसी programming language में जाके solve कर सकते हो. ठीक है, ऐसे ही there are other sections like algorithms, data structures वगैरह वगैरह, but हम Python पे focus करते हैं. So I'll just open the Python section. And again, हमने इतना पढ़ लिया है पिछले कुछ सेशन में that we should be able to solve. I would say the first 1 2 3 4 5 problems with ease. And यहाँ पे हर problem के साथ उसका difficulty लिखा होता है. तो यहाँ पे easy लिखा हुआ है, यहाँ पे easy लिखा हुआ है. This one is medium difficulty, and then these are all easy. तो I would say the easy problems इसमें से काफी ज़्यादा हम already कर सकते हैं because we have already seen the the statements, the instructions to do this. So starting with this first one, say hello world. So इसका problem statement I will just briefly describe. ये ऐसा expect कर रहे हैं कि you will write some command, write some program in Python which will print this statement hello world. मतलब output जो होगा screen पे आना चाहिए वो hello world होना चाहिए. So इसका program हमने देखा already. Actually यहाँ पे लिखा हुआ है already, print hello world. And I can just submit this code and it will take a second to check कि हमने सही से लिखा है नहीं लिखा है. What's this? So it takes a second usually. So I will तब तक I will open the other problems and we can look at them. तो Python में जाते हैं and say hello world. Arithmetic operators, similarly it will ask you to maybe write some basic mathematical operations, addition, subtraction. तो यहाँ पे statement होती है problem के ऊपर लिखी हुई. The provided structure blah blah blah. So the first line contains sum of two numbers, the second line contains difference of two numbers, and the third line contains the product of two numbers. ठीक है, तो हमारे को basically दो वेरिएबल मिलेंगे a and b, एंड पहली लाइन में हमारे को प्रिंट करना है उसका सम, दूसरी लाइन में प्रिंट करना है डिफरेंस, एंड थर्ड लाइन में प्रिंट करना है उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका प्रोडक्ट. ओके, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. सो आपका इनपुट जो यूजर आपको देगा इनपुट, दैट विल बी टू नंबर्स विच विल बी द फर्स्ट वैल्यू a एंड द सेकंड वैल्यू b, एंड देन आपको ये तीन लाइन आउटपुट में दिखानी है, राइट. एंड देन व्हेन यू सबमिट दिस प्रोग्राम, ये जो सिस्टम है हैकररैंक का, इट विल बेसिकली ट्राई फॉर डिफरेंट इनपुट्स. मतलब 3 2 ट्राई करेगा, 1 2 ट्राई करेगा, 5 10 ट्राई करेगा, एंड देन इट विल सी कि आपका जो आउटपुट मिल रहा है आपके प्रोग्राम से, डज इट मैच द एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल बी ग्रेडेड बेसिकली. तो पहला वाला प्रॉब्लम जो है ये हेलो वर्ल्ड वाला, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस. तो यहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड दिस, यू आर 30 पॉइंट्स अवे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है.
So this is the first problem. The second problem is this. तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ. I won't explain it because I've already done that. So यहाँ पे already इन्हें थोड़ा प्रोग्राम लिख कर रखा है. स्टार्टिंग वाला जो इनपुट लेने का प्रोग्राम है. So पहली लाइन में क्या होगा कि so this first line, just ignore this for now. This is not too relevant right now. यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम देखना. तो पहली लाइन में हम इनपुट ले रहे हैं a एंड सेकंड लाइन में हम फिर से इनपुट ले रहे हैं b. आई कैन एक्चुअली पाइथन 3 रखता हूँ मैं इसमें. ठीक है. हाँ, तो पहली लाइन में इनपुट ले रहे हैं a एंड सेकंड में b ले रहे हैं. एंड आई ऑलरेडी शोन यू कि इनपुट कैसे लेते हैं. तो देन व्हाट आई हैव टू डू इन द फर्स्ट लाइन इज आई हैव टू प्रिंट a plus b, right? In the second line I have to print a minus b, and in the third line I have to print a into b. That's all. That's all you have to do in this program. I'll just submit this code, and इसमें कुछ टेस्ट केसेस रन करके चेक करेंगे कि बेसिकली हमारा कोड सही है नहीं है. एंड इट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, जब तक ये सॉल्व कर रहा है, चेक कर रहा है हमारी प्रॉब्लम को, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. खुला ही रखना चाहिए मेरे को पाइथन वाला सेक्शन इसमें. तो पहला वाला सॉल्व कर लिया हमने. एंड देन दिस नेक्स्ट वन इज पाइथन इफ एल्स. इफ एल्स भी लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि इफ यू हैव टू चेक अ कंडीशन एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, आपको दो डिफरेंट ऑप्शंस है, राइट? फॉर एग्जांपल सिंपली एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कहीं पे. आई नो हम थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ मैं, बट आई जस्ट वांट टू गेट दिस ओवर विद इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स. उसके बाद हम जो नया टॉपिक उठाना है हमारे को वो देखते हैं. इसको क्लियर कर देता हूँ मैं. तो इफ एल्स इज समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है a, राइट, एंड उसमें कुछ वैल्यू है, एंड आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सैंपल प्रोग्राम दैट इफ a is for example greater than 0, तब क्या करना है कि let's say we want to print positive. ठीक है. And if a is less or equal to 0, or actually it should be greater or equal to 0, and if a is less than 0 we should print negative. तो इस केस में क्या होता है कि there is two ways to go, right? There's two options to take depending on the value of this condition, whether it's true or false, right? You can either go with this path or you can go with this path. ठीक है. And when you go with one of these paths, the other path is basically ignored. ठीक है. तो this is the if else condition. तो इसको कैसे लिखते हैं basically Python में you will write something like let's say if a is greater or equal to 0, print positive. मतलब ये लिख रहा हूँ मैं plus v, but you know you'll write the whole POSIT जो भी है, and otherwise I'll print negative. ठीक है. So this is if else. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम इन्हें बताया मैं लिखने के लिए, what it says is that you have been given an integer n. ठीक है, आपके पास इनपुट में जैसे हमने पहले इनपुट लिया था वैसे हमारे को एक इनपुट वैल्यू मिलेगा जो कि हम n वेरिएबल में स्टोर करेंगे. ठीक है. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशनल चेक्स. चेक क्या करना है? if n is odd, if the number n is odd, then we will print this word here, weird. ठीक है, ये प्रिंट करना है. if n is even and in the inclusive range 2 to 5, then we will print not weird. So if n is even and it is between 2 sorry, if it is between 2 and 5 inclusive, मतलब 2 या 5 भी हो सकता है, and it is also even at the same time, मतलब 2 4, मतलब दो ही ऑप्शन है, 2 या 4 हो सकता है, because in this range there is only two even numbers, 2 and 4. And if that is the case, you will print not weird. Now the third condition is कि if n is even and in the range 6 to 20, right? If it's 6, 8, 10, 12, 14, so on up to 20, then you will print weird again. ठीक है. And finally, if n is even and greater than 20, then you will print not weird. तो थोड़ा अजीब सा problem statement है. It does not make a whole lot of practical sense, but this is just a problem statement. तो चार चीजें चेक करनी है हमारे को, basically चार conditions चेक करनी है, and depending on which condition is true, we will print the corresponding word, weird or not weird, depending on whatever they have specified here. ठीक है. तो for example, यहाँ पे अगर sample input 3 है, मतलब इनपुट अगर 3 दे रहे हैं हम प्रोग्राम में 3 इनपुट डाल रहे हैं हम, in that case it's pretty simple. पहली कंडीशन ये है कि if n is odd then print weird, that is all. तो odd numbers के लिए हमेशा we have to print weird. ठीक है. अगर even है then we have these 3 other conditions. तो यहाँ पे input 3 के लिए output weird है, right? But in this case this is another example input. अगर input 24 है, what do we print? So let's go one by one over these conditions. If n is odd, print weird. So n is obviously not odd because n in this case is 24. तो पहली condition true नहीं है. If n is even and in the range 2 to 5, पहला part सही है इसका, but the second part is false, so we will skip this. If n is even and in the range 6 to 20, again first part is correct, second part is incorrect, so we'll skip this. And finally, if n is even and greater than 20, जो कि correct है, दोनों conditions correct हैं, then we will print not weird. मैं बिल्कुल जल्दी से इसको कोड कर लेता हूँ.
पाइथन 3 रखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनने ऑलरेडी कोड लिख दिया है n इनपुट लेने का फ्रॉम द यूजर समहाउ, वो खुद n इनपुट कैसे लेता है, वो ऐसे लेता है, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सो वी डोंट नीड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, वी जस्ट नीड टू परफॉर्म द चेक्स एंड द कैलकुलेशंस। तो सिंपल इफ, अब इवन कैसे चेक करते हैं, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लाइक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इवन नंबर कैसे हम फाइंड आउट करें कि कोई नंबर इवन है या नहीं है। तो आई हैव मेंशन्ड दिस ऑपरेटर इन द स्टार्टिंग, पाइथन में जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं उसमें से एक ऑपरेटर जो होता है दैट इज द परसेंट ऑपरेटर, और द मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, एंड व्हाट इट डज इज दैट इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर, जो डिवीजन में रिमाइंडर होता है ना वही कैलकुलेट करता है ये। तो इफ यू डू a%b, इट विल बेसिकली डिवाइड a by b, ओके, एंड देन जो रिमाइंडर बचता है इट विल रिटर्न दैट। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव let's say 6% 2, right? तो इन दिस केस रिमाइंडर इज ऑब्वियसली 0, तो इसका आंसर जो 0 होगा। वैसे अगर 7% 2 में ट्राई करूं उसका आंसर 1 होगा। सो इंस्टिंक्टिवली आपको समझ आ जाना चाहिए कि इफ आई हैव टू चेक if a number is even or not, I will just divide it by 2 and see what the remainder is. अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालने के बाद आफ्टर आई कैलकुलेट द रिमाइंडर अगेंस्ट 2, अगर रिमाइंडर 0 है दैट मींस इट्स एन इवन नंबर, अगर रिमाइंडर 1 है देन इट्स एन ऑड नंबर, राइट? इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टू चेक इफ द नंबर इज ऑड, n% 2 शुड बी 1, राइट? दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं व्हेन यू डिवाइड बाय 2 इन द रिमाइंडर, 0 या 1 हो सकता है। अगर 1 है इसका मतलब वो ऑड है, एंड वी नो इफ द नंबर इज ऑड, लाइक फ्रॉम द स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, इफ n इज ऑड देन वी प्रिंट वेयर्ड, ठीक है? बाकी कुछ कंसीडर नहीं करना है, सिंपली वेयर्ड प्रिंट कर देना है। तो आई विल जस्ट गो बैक हियर, इफ n% 2 is 1 then print weird, WEIRD, ठीक है। दूसरी कंडीशन है इफ n इज इवन, ओके, इफ n%2, सॉरी n%, अरे क्या इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन इसके आगे कुछ एडिशनल कंडीशंस चेक करनी है हमारे को, राइट? मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा ये सही तरीका लिखने का नहीं है बट समझाने के लिए आई विल राइट इट लाइक दिस, आगे जाके मैं भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इफ n इज इवन एंड इन द रेंज 2 to 5, ठीक है, इंक्लूसिव रेंज, सो सिंपली मीनिंग इफ n% 2 is 0 which means it's even, and लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ सिंपली वी विल राइट and, ठीक है। जो बूलियन एंड ऑपरेटर होता है वैसा ही ऑपरेटर ये भी, इट विल बेसिकली चेक द कंडीशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट, एंड अगर दोनों राइट है मतलब दोनों ट्रू है देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, ओके। तो इफ n% 2 is 0 and n is between what 2 and 5 था आई थिंक, राइट? 2 and 5, yes। तो सिंपली जैसे मैथ में लिखते हैं ना हम, 2 is less or equal to n, sorry, less or equal to n is less or equal to 5, मतलब 2 is between n and 2, n is between 2 and 5. In that case we have to print not weird, I think that is what we have to print, I'll check, not weird, ठीक है। ऊपर जाके चेक करते हैं, हाँ, इफ इट्स इन द रेंज 2 to 5 देन वी प्रिंट नॉट weird, अगर n इवन है एंड इट इज इन द रेंज 6 to 20 देन वी विल प्रिंट weird। तो you should be able to write this statement also, I'll just copy ये last वाली statement, I will paste it here, सही से लिखते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इवन, सो n% 2 is equal to 0 एंड इट शुड बी इन द रेंज 6 to 20, तो 6 से लेके 20 तक, देन वी विल प्रिंट weird, ठीक है। एंड फाइनली if n% 2 is 0 which means it's even and n is greater than 20, I think this is the condition, if n% 2 is मतलब n is even and greater than 20 then we will print not weird, ठीक है। then we will print not weird, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन डाउट है किसी को तो बता दे जल्दी से मेरे को, आई विल जस्ट एड्रेस anagram, तो ठीक है, आई डोंट थिंक वी हैव एनी रेलेवेंट क्वेश्चंस सो फार। So this is the program which will solve this problem, ठीक है। and I will just submit this and it will check if this code is correct or not। तो यहाँ पे जल्दी से हो गया, तो ये tests it for a couple of different cases, different inputs डाल के check करता है वो कि सही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है, and then it tells us कि whether we have successfully solved this problem or not। Now इस प्रोग्राम को I will rewrite it in a different way and I want you to try to figure out कि मैं जो नया प्रोग्राम लिख रहा हूँ how is it equivalent to the one that I have written here। ये थोड़ा लंबा है यहाँ पे, it is not very optimized, तो थोड़ा सा हम सही तरीके से लिख सकते हैं। So just I'll quickly write it। आप इसका मतलब मैं जब कंप्लीट करूँ लिखना उसका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का कि how this and that program are the same, ठीक है। तो I will just write it like this, sorry, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, n% 2 is 0 and then I will do this if
बेटा ठीक है, इसका एंड जरूरत नहीं है हमारे को, ऐसे ही यहाँ पे ये हटा दिया, इसको एक लेवल आगे, इसको एक लेवल आगे, एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक्चुअली नो व्हाट, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं हम, ये भी हटा सकते हैं इसमें, एंड यहाँ पे if else, ठीक है। So this program and the one that I wrote before, they are identical, ठीक है, I think so at least, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग से identical, एक बार रन करके देख लेते हैं सबमिट कोड करके, ठीक है, हाँ looks correct. So I want you to try and figure out how these two are the same programs, मतलब कैसे वो and ये वाला प्रोग्राम जो है सेम है, you can take a screenshot and try to solve it आगे जाके, ठीक है। वैसे ही बाकी सारे ऑपरेशंस है यहाँ पे, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू लाइक ईच प्रॉब्लम, आप खुद ट्राई कर लो, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी फन। तो आई विल गो बैक टू द टॉपिक दैट वी वर प्रीवियसली टॉकिंग अबाउट, व्हिच वाज लूप्स, ठीक है। लूप्स इन पाइथन व्हाट दे बेसिकली डू इज दे अलाउ यू टू रिपीट एन ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स, एंड लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि लूप्स जो होते हैं they are of two types, or in मतलब they are of multiple types, but there are two important types. द फर्स्ट वन इज जिसमें आपको पता होता है कि कितनी बार रिपीट करना है, तो लेट्स से यू नो एग्जैक्टली कि मेरे को ये ऑपरेशन जो है, कोई ऑपरेशन नीचे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है आपने, 5-6 स्टेटमेंट्स है, यू नो एग्जैक्टली कि ये चीज जो है ये मेरे को 1000 बार रिपीट करनी है। So this is one kind of loop, and you use the for loop for this particular case. Then there is another type of loop in which you don't know कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, आपके पास कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस मल्टीपल टाइम्स, बट अनलाइक दिस केस यू डोंट नो कि कितनी बार ये रिपीट करना है, यू डोंट नो द काउंट ऑफ द रेपिटेशंस, ठीक है। व्हाट यू डू नो इज कि मेरे पास कोई कंडीशन है, फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये रिपीट करते रहो, as soon as this a is less greater or equal to 0, as soon as this becomes false, you basically stop repeating this, ठीक है। तो फर्क क्या है, यहाँ पे वी नो एग्जैक्टली कि 1000 बार एग्जीक्यूट होगा, बट यहाँ पे वी डोंट नो कि मतलब अंदर कुछ हो रहा होगा ऑपरेशन जिसकी वजह से ए का वैल्यू चेंज होता रहता होगा, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कितनी बार होने के बाद ए will become less than 0. This is just an example condition, right? They can have different conditions, but in general we don't know कि कितनी बार execution होगा before this condition is basically not satisfied, and therefore loop खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है, let us see, मेरे पास कोई example पड़ा हुआ है क्या, ठीक है, हाँ, लेट्स से आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं पाइथन का अपना आईडी खोल देता हूँ। सो लेट अस से आई आस्क यू टू व्हाट एग्जांपल डू आई गिव, तो आई जस्ट राइट एन एग्जांपल व्हाइल लूप, फिर आगे जाके देखते हैं इसको समझ सकते हैं या नहीं। तो लेट अस से आई टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है, इन अ वेरिएबल कॉल्ड n, ठीक है, एक इनपुट लिया जो कि इंटीजर होगा, and what I want to do is I want to sum all the numbers from 1 to n, correct। तो मेरे पास एक वेरिएबल होगा sum of first n, ठीक है, इनिशियली 0 होगा उसका वैल्यू, ठीक है। what I will do is I will go over all the numbers from 0 to n, and I will sum them together, and I will sum it in this sum of first n variable, ठीक है। तो इसका एक तरीका फॉर लूप से भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर i, और लेट्स से फॉर काउंटर इन रेंज n, actually n plus 1, sum of first n is plus equals counter, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, this counter variable, again this is a variable, you can name it anything, let's say we will call it kei's counter, just to like elaborate कि variable है and we can name it anything, ठीक है। so यहाँ पे भी counter के बदले kei's counter लिख देते हैं। तो what we will do is कि we will start kei's counter from the lowest value which is 0, ठीक है, एंड वी विल एग्जीक्यूट दिस ऑपरेशन। तो सम ऑफ फर्स्ट एन जो वेरिएबल है उसको हम, ये प्लस इक्वल टू, अगर समझ नहीं आ रहा आपको मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्चुअली इसका मेंशन किया था मैंने कि इसका मतलब क्या होता है, बट जस्ट टू क्लैरिफाई ये इसका मतलब ये होता है बेसिकली। तो जो सम ऑफ फर्स्ट एन वेरिएबल है, आई विल जस्ट टेक दैट इट्स लेटेस्ट वैल्यू एंड आई विल ऐड के ई काउंटर का जो भी वैल्यू है, आई विल ऐड इट टू दिस। तो सबसे पहले क्या होगा कि के ई काउंटर का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 0 ही आउटपुट है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन जो है 0 ही रहेगा। बट देन इट विल गो बैक, इट विल चेक कि जो ये काउंटर है
ये इस रेंज से बाहर निकला या नहीं निकला अभी तक. If it has मतलब if it has exceeded this range, then it will quit this counter or this loop. Otherwise it will take the latest value, like add 1 to it. तो कि ये इस काउंटर 0 से 1 हो जाएगा, एंड देन इट विल एड इट बैक टू सम ऑफ फर्स्ट n, तो 0 + 1 हो जाएगा. फिर वापस ऊपर जाएगा कि ये इस काउंटर को +1 कर देगा, जब तक हम n + 1 तक नहीं पहुंच जाते. n + 1 कहाँ से लाया हमने, n कहाँ से लाया, बेसिकली हमने इनपुट लिया यूजर से, वहां तक हम कर रहे हैं. तो लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ एक, इंटर वैल्यू ऑफ n. ठीक है, तो यहाँ पे सब कर लिया, एंड एंड पे वी विल जस्ट प्रिंट sum of first n. So I will run this, save this once, desktop पे सेव करते हैं इसको, 1 2 3, एंड नाउ वेयर इज इट रनिंग. आई थिंक इस पे यहाँ पे बैकग्राउंड में कहीं पड़ा हुआ है. हाँ, तो एंटर वैल्यू ऑफ n, तो लेट्स से आई जस्ट पुट 10. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 55. आप चेक कर सकते हो एक बार इफ यू वांट टू. बट बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर इटरेटिंग ओवर दिस. We are basically taking this KEI counter variable. We're starting from 0, and then we're incrementing it every time. And every time we increment it, we are executing this statement. ठीक है, एंड उससे क्या हो रहा है कि 0 to n जो वैल्यू है, सबका वैल्यू सम, सबका काउंट जो है बेसिकली सम हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द फॉर लूप, राइट. इस केस में हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं ऐसे लिख के. तो लेट अस से, मैं हटा देता हूँ सबको, मैं उसको ऐसा लिखता हूँ कि करंट नंबर. ठीक है, तो करंट नंबर इज बेसिकली, अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0. सो द करंट नंबर व्हेन यू स्टार्ट विद 0 इज 0, एंड देन व्हेन यू गो ऑन टू वन नंबर हायर, द करंट नंबर विल बिकम 1, एंड देन विल बी 2 3 4, एंड आपको कहां तक जाना है, टिल करंट नंबर रीचेस द लिमिट विच इज द वैल्यू गिवन इन n. ठीक है, तो करंट नंबर इनिशियली 0 होगा. ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऐसे, while current number is less than or equal to n, do this. Do what? Sum of first n जो वेरिएबल है, उसमें अपना वैल्यू ले लो पहले, सम ऑफ फर्स्ट n का अपना जो वैल्यू है, एंड देन ऐड द करंट नंबर टू इट. ठीक है, शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. तो करंट नंबर इनिशियली 0 है, राइट. वी आर सेइंग कि जब तक करंट नंबर इज लेस और इक्वल टू n. ठीक है, जब तक ये लेस और इक्वल टू n है, एक काम करो, सम ऑफ फर्स्ट n का वेरिएबल ले लो, जितना भी वैल्यू है उसका, उसमें ये करंट नंबर को ऐड कर दो. ठीक है, एंड देन व्हेन दिस कंडीशन इज फॉल्स, बेसिकली जब ऐसा हो जाए कि करंट नंबर n से बड़ा हो जाए, व्हेन करंट नंबर बिकम्स ग्रेटर देन n, एट दैट पॉइंट डू नॉट एग्जीक्यूट दिस, स्किप करके एंड वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर लो, जो कि सम ऑफ फर्स्ट n. So I want you to try and imagine what will happen if I run this right now. Just try and imagine कि क्या होगा. पहले तो इनपुट लेगा मेरे से प्रोग्राम की, n का वैल्यू बताओ क्या डालना है. ठीक है, मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 10 लिखता हूँ मैं, एंड आई नो कि करेक्ट आंसर उसका 55 है. आई सॉ इन द लास्ट एग्जीक्यूशन. तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इनिशियली 0 है, एंड देन करंट नंबर मेरा 0 है, वो भी ठीक है. देन वी आर सेटिंग दिस कंडीशन विच लुक्स करेक्ट. दिस कंडीशन लुक्स करेक्ट दैट जब तक करंट नंबर मेरा लेस देन n है, मैं बढ़ाते जाऊँ एक एक करके उसको, एंड देन आई विल ऐड इट टू दिस सम ऑफ फर्स्ट एंड वेरिएबल, एंड देन फाइनली आई विल प्रिंट इट. बट देयर इज अ स्मॉल बग हियर और स्मॉल एरर हियर. ठीक है, तो क्या एरर है, लेट मी ट्राई टू रन दिस एंड सी एरर समझ आता है नहीं आता है. तो इफ आई रन दिस, तो आई विल एंटर द वैल्यू ऑफ n, लेट्स से 10, एंटर दबाया, ओके, नथिंग इज हैपनिंग. Actually something is happening in the background, it is adding, it's trying to calculate the value. But क्या हो रहा है, it is stuck. Basically it is stuck in an infinite loop. ये खत्म ही नहीं हो सकता कहीं पे, क्योंकि हमने जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है, it will never terminate. If you think about it, why will it not terminate? यहाँ पे हमने करंट नंबर n ले लिया, मतलब 0 ले लिया इनिशियली. हमने बताया इसको कि करंट नंबर जब तक n से लेस, इसको मैं बंद कर देता हूँ अदरवाइज मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा. तो करंट नंबर इनिशियली 0 है, while current number is less or equal to n, हम ये ऑपरेशन रिपीट करना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली वी वांट टू रिपीट इट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. बट इसमें ऐसा है कि हमने करंट नंबर इनिशियली 0 लिया, पर उसको बढ़ाया ही नहीं कहीं पे. वी हैव टू इंक्रीमेंट इट बाय 1 एट ईच स्टेप, लाइक आफ्टर वी सम द वैल्यू, राइट, वी हैव टू इंक्रीमेंट इट बाय 1. अभी ऐसा हो रहा है कि इनिशियली 0 है इसका वैल्यू, बट नोवेयर इन दिस प्रोग्राम आर वी इंक्रीमेंटिंग करंट नंबर. तो ये हमेशा 0 पे ही रहता है. ठीक है, एंड 0 इज ऑलवेज लेस देन n, जो कि हमारा 10 है. इट विल ऑलवेज कीप डूइंग दिस. तो कुछ होगा नहीं, मतलब ये 0 + 0 करते रहेगा बार 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 बार, बट इट विल नेवर एग्जिट आउट ऑफ दिस लूप बेसिकली. ठीक है, सो वी हैव एंटर्ड व्हाट इज कॉल्ड एन इन्फिनिट लूप. ओके, एंड इन्फिनिट लूप इज अ बैड थिंग. यू डोंट वांट एन इन्फिनिट लूप. यू ऑलवेज वांट योर प्रोग्राम टू एंड समवेयर. यू वांट योर प्रोग्राम टू एंड एंड गिव यू अ रिजल्ट. बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस इशू. तो इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपली हम क्या करेंगे कि या तो इस स्टेटमेंट के पहले
या स्टेटमेंट के बाद, इट डजंट मैटर, बोथ आर करेक्ट, बट लेट्स से मैं इसको बाद में लिखता हूँ। n को मैं, सॉरी n नहीं, करंट नंबर जो है मेरा, करंट नंबर जो है मेरा, आई विल इंक्रीमेंटेड बाय 1, करंट नंबर प्लस 1। नाउ इट शुड वर्क बिकॉज करंट नंबर बढ़ता रहेगा हर स्टेप पे, एंड सूनर और लेटर इट विल रीच दिस n वैल्यू, जो कि हमारा n वैल्यू है, एंड जैसे ही उससे बड़ा हो जाएगा वो, दिस लोअर कोड लाइक वट एवर कोड इज प्रेजेंट हियर, इट विल नॉट एग्जीक्यूट एंड देन द प्रोग्राम विल टर्मिनेट। इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो एंटर वैल्यू ऑफ n 10 एंड द रिजल्ट इज 55। तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। सो इफ यू write a loop and you forget to add this 1 or 2, जितना भी ऐड करना है तुम्हारे को, if you forget this your loop will never terminate। बट द क्वेश्चन इज, जब हमने फॉर लूप लिखा था ना, आई विल जस्ट अनडू दिस टू गो बैक टू द फॉर लूप जो हमने लिखा था यहाँ पे, वहां पे हमने लिखा ही नहीं था कुछ ऐसा मतलब n+1 करो या फिर कुछ भी ऐसा इंक्रीमेंट करो। आई एम जस्ट डूइंग अनडू जब तक हम हमारा वो फॉर लूप वाला कोड वापस आ जाए। तो ये जो हमारा कोड था, तो यहाँ पे तो हमने कहीं पे लिखा ही नहीं, ना ही हमने यहाँ पे करंट नंबर लिखा, ना ही हमने यहाँ पे बेसिकली इंक्रीमेंट किया उसको। एक्चुअली करंट नंबर लिखा है यहाँ पे, इसका नाम मैंने डिफरेंट लिखा है। तो जो KEIS काउंटर है ना, ये बेसिकली उसी का काम करता है जो कि हमारा करंट नंबर वैल्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट नंबर ही लिख देता हूँ। तो करंट नंबर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ऐसे यूज हो रहा है। ठीक है, सेम थिंग जो आप इफ यू नोटिस द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जैक्ट सेम, सम ऑफ फर्स्ट n इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n प्लस करंट नंबर। ठीक है, अब फर्क यहाँ पे ये है कि विदाउट स्पेसिफाइंग दिस इंक्रीमेंट, कि सब जो करंट नंबर है उसको एक क्वांटिटी से बढ़ाना है एवरी टाइम, वी हैवंट स्पेसिफाइड दैट एनीवेयर, बट स्टिल इफ आई रन दिस इट विल टर्मिनेट एक्चुअली एंड इट विल शो मी द करेक्ट रिजल्ट। तो क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि जो स्टेटमेंट है ना फॉर करंट नंबर इन रेंज n, ये ऑटोमेटिकली वो चीज हैंडल कर लेती है। सो बाय डिफॉल्ट व्हाट इट विल डू इज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, it will go all the way to n+1, and at each step or after each step it will increment the value of this current number by 1। तो मतलब ऐसा सोचो कि इंटरनली खुद ही वो n+1 कर लेता है। एंड इफ यू डोंट वांट कि बस 1 से बढ़ाना है मेरे को करंट नंबर को, इफ यू वांट लेट्स से मुझे 5 से बढ़ाना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्पेसिफाई यहाँ पे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, n+1 तक जाना है, कॉमा डालने के बाद हाउ मच डू यू वांट टू इंक्रीमेंट एट ईच स्टेप, तो 5 डाल देता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि करंट नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0, it will go all the way to n+1, and after each execution of this it will not increment current number by just 1, it will increment it by 5। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है कि स्टार्ट एंड एंड स्टेप बोलते हैं इसको बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ तो आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन करंट नंबर विल बी इंक्रीज बाय 10। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेट्स आई इंक्रीज इट बाय 2। ठीक है, तो इफ आई रन दिस, इंटर वैल्यू ऑफ n 10, तो क्या होगा, यहाँ पे 30 आ रहा है। क्यों 30 आ रहा है? करंट नंबर इनिशियली 0 होगा। ठीक है, उसके बाद उसने एग्जीक्यूट कर लिया नीचे वाला कमांड, ये वाला। ठीक है, 0 + 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट n का 0 है, करंट नंबर भी 0 है, तो 0 + 0 0, तो sum of first n में 0 आ गया। आफ्टर दैट इट विल गो बैक टू दिस स्टेटमेंट एंड नाउ इट विल इंक्रीमेंट n। ठीक है, इट विल इंक्रीमेंट n बाय हाउ मच, 2, कि यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, अदरवाइज 1 अगर हमें कुछ नहीं लिखता यहाँ पे तो इट विल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि 1 मुझे मतलब आई हैव टू इंक्रीमेंट बाय 1, बट इफ आई स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली कि कितना इंक्रीमेंट करना है, इट विल यूज दैट वैल्यू। तो करंट नंबर को +2 कर देगा ये, तो 0 + 2 2 हो गया। ठीक है, तो नाउ द वैल्यू ऑफ करंट नंबर इज 2, तो नीचे जाके स्टेटमेंट में आ जाएगा ये। तो सम ऑफ फर्स्ट n अभी भी 0 है, करंट नंबर अब 2 हो गया, तो सम ऑफ फर्स्ट n प्लस करंट नंबर इज 2। तो ये जो वैल्यू हमारा सम ऑफ फर्स्ट n का है अब 2 हो गया। अगेन इट विल गो बैक, इट विल इंक्रीमेंट 2/2 4 हो गया, फिर नीचे इसको ऐड करेगा एंड विल कीप डूइंग इट अंटिल दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड दैट n+1 की बाहर निकल जाए वो। ठीक है, n+1 यहाँ हमने 10 डाला था, तो 2 4 8 पे चलेगा, 10 पे नहीं चलेगा क्योंकि 10 इस लिमिट से, उस रेंज से बाहर है। नहीं एक्चुअली 10 पे चलेगा, 12 पे नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि 12 इस रेंज से बाहर है, 0 to 10 की रेंज से बाहर है, देयरफॉर इट विल टर्मिनेट हियर। ठीक है, तो आई होप लूप्स में कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन है। A while loop is in Python is used for what type of iteration? तो वही बता रहा था कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया मैंने, इट इन दिस केस यू कुड यूज बोथ अ फॉर लूप एंड अ व्हाइल लूप। मेरा एग्जांपल बहुत ही एग्जैक्ट नहीं था, मतलब सही नहीं था, बट आइडियली यू विल यूज अ व्हाइल लूप। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखता हूँ मैं, व्हाइल, एंड यहाँ पे तुम कोई कंडीशन लिखोगे तो तुम्हें पता नहीं कि कब फॉल्स हो जाएगी, राइट? इस केस में मुझे पता था कि मतलब एंड डाला है मैंने तो कितने टाइम रिपीट करना है, तो इन दिस केस आई न्यू। बट इन जनरल यू माइट हैव अ प्रॉब्लम जहाँ पे आपको कोई कंडीशन दी हुई है, राइट, एंड यू डोंट नो कि वो फॉल्स कब होगी। तो आप ऐसा लिख देते हो कि वाइल कंडीशन इज ट्रू, मतलब जो भी कंडीशन है वो ट्रू है, जस्ट कीप रिपीटिंग दिस ऑपरेशन, सम ऑपरेशन नीचे लिखा है मैंने, मतलब ये एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल कोड नहीं है, आई एम जस्ट
explaining what is happening, but I'm specifying कि जब तक ये condition जो है ये true है, so keep repeating this operation, and जैसे ही condition false हो जाए, stop this operation. तो इसका एक practical example अगर मैं बताऊं आपको, तो just imagine that um, क्या example होगा इसका? ठीक है, हाँ, you can imagine something like this. You can say, let's say you have a program which is supposed to execute some operation as long as the user does not press a key. ठीक है, जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करता है, आपको वो ऑपरेशन रिपीट करते ही करते रहना है. ठीक है, नाउ इन दिस केस यू डोंट नो कि यूजर वो की कब एंटर करेगा. मतलब लेट्स से आई स्टार्ट द प्रोग्राम राइट नाउ, मतलब कितने 9 बज गए अभी, तो आई स्टार्ट द प्रोग्राम राइट नाउ. तो अभी क्या है कि वो की प्रेस नहीं की उसने, तो कंडीशन जो है अभी ट्रू ही है, तो ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया. फॉर एग्जांपल ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स से इट इज प्रिंटिंग समथिंग और डूइंग समथिंग, व्हाटएवर इट इज डूइंग, बट द मेन थिंग इज कि अभी उसने की प्रेस नहीं की, सो वी विल रिपीट दिस ऑपरेशन. एंड जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है, वी विल गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, वी विल चेक दिस कंडीशन अगेन, अभी भी ट्रू है क्योंकि यूजर ने की एंटर नहीं की, फिर से ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा. इट विल कीप गोइंग बैक एंड कीप गोइंग बैक until this condition is satisfied. Like basically this condition is falsified, basically meaning that the user actually presses the key. तो उसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ. Again, this is not the correct code, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ. तो while user has not pressed the key, ठीक है, तो do some operation. ठीक है, this is an example where a while loop would be required. ठीक है, because यहाँ पे you never know कि वो कब करेगा वो key enter. You don't know, do you repeat it 100 times, 1000 times, 1 million times, कब तक करना है repeat, you don't know, right? But as soon as the user presses this key, right, तो ये condition somehow, like we don't know how this works, but somehow this condition जो है, it will become false, and as soon as that happens, this operation will not be executed anymore. ठीक है, तो इससे क्या काम हो गया आपका, आपका लूप चलता रहा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंड यू नेवर न्यू कि कितनी बार रिपीट हुआ. बाद में जाके आप देख सकते हो कि कितनी बार रिपीट हुआ, बट व्हेन यू रोड दिस कोड यू डिड नॉट नो कि कितनी बार रिपीट होना चाहिए. सो इन दोज सिचुएशंस यू विल राइट अ व्हाइल लूप. बट अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली 10 बार रिपीट करना है, 50 बार रिपीट करना है, या फिर 1000 बार रिपीट करना है, देन यू विल यूज अ फॉर लूप. ओके, what will be the final value of n? Where will it stop? I don't know which n you're referring to. I'm sorry about that. n, यहाँ पे कोई n की बात कर रहे होगे आप, I think. If you're talking about the current number का value, तो it will stop when it reaches the end of this limit, जो कि 0 to n plus 1 की लिमिट में जब वो end कर लेगा, मतलब it will exit this range, then it will stop basically. ठीक है, ठीक है, that is I think all the questions for now. So now I will move on and I will talk about a couple more things about this loop. ठीक है, तो loop जो बहुत ही important topic है, like for example just to give you a sense कि कितना important है, जो यहाँ पे problems मिलेंगी ना आपको hacker rank पे. So there is a list of problems, there is like hundreds of problems, thousands of problems, and उसमें in I would say 70 to 80% of the cases you will use the loop somewhere for whatever reason. कहीं ना कहीं आपको loop use करना ही करना पड़ेगा. ठीक है, so it is very important to understand this. Now, the thing is, let's talk about some other cases of the loop. So let's say I write a loop like this for counter, or हाँ कोई भी लिखते हैं, counter in range 100, print hello. तो पहले इसका मतलब कि इस प्रोग्राम का it will start a counter from 0, it will go all the way to 100, and every time it will print hello. तो basically meaning it will print hello 100 times. If I run this and I'll run this, तो hello 100 times print हो गया. And just to show you कि 100 times ही run हुआ है, I'll actually print hello के आगे I'll print the value of this counter also. ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, तो run. ओके सॉरी, तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, आई हैव रिटन यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है मैंने, एंड यहाँ पे मैंने काउंटर लिखा है जो कि एक इंटीजर है, बिकॉज इट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 100, तो ऑब्वियसली एक नंबर है. तो यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टू ऐड अ स्ट्रिंग टू अ नंबर, एंड इट्स सेइंग कि तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग टू अ नंबर. You can add a string to a string or an integer to an integer, but you cannot add a string to a number. So what I will do is, in this case, I will just convert the second value to string. And इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं. We have talked about this in the previous sessions. तो now what is happening is कि दोनों cases में string है, and we're trying to add two strings, and दो strings का जो addition होता है it simply means उनको join कर देना है, ठीक है, concatenate कर देना है. ठीक है, now if I try to run this, I will not get this error, and now I'll get this whole thing. Start होता है 0 से 1 2 3 4 so on up to 99 तक पहुंचता है. 0 to 99 is 100 repetitions basically. ठीक है, तो let us say what I want to do is कि
When I reach, let's say 50, okay, I don't want to print hello 50. Or let us say, मतलब दो तीन वैल्यूज मेरे पास कुछ ऐसे हैं फॉर विच आई डोंट वांट टू प्रिंट हेलो, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, दिस काउंटर, दीज नंबर्स, राइट, दीज रिप्रेजेंट रोल नंबर्स, ठीक है, इन अ क्लास, ठीक है। तो आई जस्ट राइट काउंटर के बदले रोल नंबर, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि दिस रोल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट्स गोइंग टू 100, एंड एवरी टाइम वी आर प्रिंटिंग हेलो रोल नंबर, सो वी आर बेसिकली सेइंग हेलो टू दैट रोल नंबर, टू दैट पर्सन हु हैज दैट रोल नंबर। बट आई डोंट लाइक, लेट्स से मेरे को पसंद नहीं आते रोल नंबर 10, 20 एंड 30 वाले, ठीक है। आई डोंट लाइक देम फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू प्रिंट हेलो 20, हेलो 30 एंड हेलो 40, जो भी है, लेट्स से थ्री नंबर्स 10, 20, 30। आई डोंट वांट टू प्रिंट हेलो 20, 30, 40, ठीक है, जो भी है। तो हाउ डू आई डू दैट? दिस इज अ स्टूपिड एग्जांपल, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि आई वांट टू चेक, अगर रोल नंबर का वैल्यू 10, 20, 30 या 40 है, देन डोंट डू दिस, राइट, देन डोंट प्रिंट दिस, करेक्ट। वन वे टू डू इट वी हैव ऑलरेडी सीन, हम एक इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। वी विल डू समथिंग लाइक दिस, इफ रोल नंबर इज 10 और रोल नंबर इज 20 और लेट्स से रोल नंबर इज 30, अगर ये तीन तीन में से कोई भी एक रोल नंबर है, नॉट ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम, कोई एक नंबर होना चाहिए इसमें से, then I will not do this. So I will basically, in that case, not run this statement, correct? That is the expectation. But how do I do this? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है मेरे को इस if condition के नीचे, यहाँ पे such that if this condition is true, जैसे ही वो condition जो ये नीचे statement लिख रहा हूँ मैं, as soon as it executes, this portion below it is skipped essentially, and it goes back to the लूप बिगिनिंग, ओके। तो बेसिकली उस इटरेशन को हम स्किप कर रहे हैं, उसके नीचे जो भी है वो सब स्किप कर रहे हैं, ठीक है। इट विल नॉट गो हियर, इट विल जस्ट डायरेक्टली गो बैक, इंक्रीमेंट रोल नंबर बाय 1 एंड चेक अगेन एंड लाइक ट्राई टू प्रिंट हेलो अगेन, ठीक है। तो इस केस में कैसे करना है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू जस्ट राइट कंटिन्यू, दैट्स इट। So if any of these conditions is true, what happens is that the looping or the iteration continues without executing जो भी इसके नीचे लिखा है। अगर यहाँ इसके नीचे और भी कुछ statements होती है ना, वो सब skip हो जाती है basically, ठीक है। तो whenever you write continue in a loop and अगर वो continue statement execute हो जाती है, उसके नीचे जो भी statements है वो ignore हो जाती है and you go back to the next value of roll number। तो इसका मतलब क्या हो जाए, जैसे ही 10 आ जाता है ना, तो it will, since this condition becomes true, it will go into this logic, it will continue, it will skip all of this stuff and it will go back to roll number, it will go to 10 plus 1, 11। वहां पे condition false हो जाएगी क्योंकि it's 11 is not either of these number, like any of these three numbers, so this continue will not execute। तो इसके बदले ये print hello 11 print हो जाएगा, ठीक है। तो if I try to do this, तो let's see क्या होता है। invalid syntax, कुछ गड़बड़ कर लिया मैंने, ओके, हाँ सॉरी। सो दिस इज अ बिग एरर एक्चुअली, सो यहाँ पे डबल इक्वल होना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या फर्क होता है। वन इज कंपैरिजन, द अदर इज असाइनमेंट, ओके। तो कहाँ है मेरा एग्जीक्यूशन, आई थिंक एग्जीक्यूट हो गया, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसको, रन, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 अप टू है 9 के बाद डायरेक्टली वी आर गोइंग टू 11, बिकॉज क्या हुआ, जैसे ही 10 आया यहाँ पे वैल्यू रोल नंबर का, यहाँ पे कंडीशन जो है रोल नंबर इज 10, ये ट्रू हो गया। एंड और स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे बीच में डाला है मैंने, और का मतलब ही ये होता है कि इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू है तो overall the statement is true, right? If one or more is true, then the whole statement is true. So since in this case this condition is true, this whole statement will be true and therefore this will execute, ठीक है। and therefore this will not execute because continue कर दिया हमने, तो loop में हम next step पे चले गए without executing what is below। वैसे ही जब 20 पे पहुंचे, हम देखते हैं 20 प्रिंट तो नहीं हुआ है, तो 18, 19 यहाँ पे 21 है, एंड वैसे ही 31 होगा, मतलब 30 के पहले 29 एंड 31 होगा, 30 नहीं होगा बेसिकली, कहाँ पे है 28, 29, 31, ठीक है। So this is one thing you can do in a loop, you can continue without executing the rest of the basically the rest of the logic in the loop, ठीक है। एंड कंटिन्यू के अलावा क्या होता है, हाँ एक और स्टेटमेंट होता है कि नाउ लेट अस से 10, 20, 30 तो ठीक है, बट देयर इज अनदर रोल नंबर, लेट अस से 45, ठीक है। एंड 45 इतना बुरा लगता है मेरे को, आई डिसलाइक 45 सो मच दैट आई डोंट वांट टू से हेलो एनी मोर, मतलब मुझे बोलना ही नहीं किसी को उसके बाद हेलो, ठीक है। सॉरी अब जिसमें आप में से किसी का 45 रोल नंबर है, बुरा नहीं मानना, बट बेसिकली आई वांट टू डू समथिंग लाइक इफ रोल नंबर इज 45, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द लूप एट ऑल, मुझे आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। आई वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप, आई वांट टू एग्जिट दिस लूप,
आई डोंट वांट टू मूव टू द नेक्स्ट नंबर इवन, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके आगे क्या आता है, आई जस्ट वांट टू क्विट दिस होल लूप. So I'll write a condition here. If roll number is equal to 45, then I have to write something here such that this whole loop is exited. So I don't basically go to 46, 47. यहाँ पे कंटिन्यू में क्या हो रहा था कि 10 जब आता था 10 को स्किप कर देते थे हम, फिर 11 पे चले जाते थे हम. वैसे ही जब 20 आता है 20 को स्किप कर दिया, 21 पे चले गए, 30 आए 30 को स्किप करके 31 पे चले गए. बट आई वॉन्ट दैट इफ रोल नंबर इज 45, देन आई जस्ट डोंट गो टू द नेक्स्ट नंबर. 45 तो पहले छोड़ ही दूं मैं, उसके अलावा 45 के आगे जो भी आता है आई विल ऑल्सो स्किप दैट. एंड द सिंपल वे टू डू दैट इज जस्ट राइट ब्रेक. That's all. So whenever in a loop this break statement is encountered or executed, उस पॉइंट के आगे लूपिंग कंटिन्यू नहीं होगी. बेसिकली उसके बाद रिपीटेशंस नहीं होंगे. जितना वहां तक रिपीट हुआ है उतना हो गया, उसके आगे कुछ रिपीट नहीं होगा, राइट. सो बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ हेलो जो ये लिख रहे हैं हम यहाँ पे, सो जस्ट थिंक अबाउट इट व्हाट विल हैपन. तो 0 1 2 3 सो ऑन प्रिंट हो जाएगा. 10 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक होके कंटिन्यू कर देगा उसको, ठीक है. वैसे 11 12 सो ऑन प्रिंट हो जाएगा. 30 20 भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डाली है. 30 प्रिंट नहीं होगा. 31 32 सो ऑन 40 40 41 42 43 प्रिंट हो जाएगा. 45 पे जैसे ही पहुंचेंगे हम, इट विल चेक दिस कंडीशन. ये तो रेलेवेंट नहीं है वहां पे, तो इसको छोड़ देंगे हम. नेक्स्ट इट विल चेक दिस कंडीशन. इफ रोल नंबर इज 45, देन ब्रेक. ब्रेक का मतलब जस्ट क्विट दिस लूप. डोंट इवन कंसिडर इसके नीचे क्या है, मतलब इस एग्जीक्यूशन के नीचे कुछ जो भी लिखा है वो सबको इग्नोर कर दो. जस्ट एग्जिट आउट ऑफ दिस लूप एंड इस लूप के बाहर निकल के जो भी बचा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर लो. तो लेट्स से हमारे इस लूप के बाहर कुछ लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, ठीक है. तो इस लूप को एग्जिट करके जो बाहर लूप के बचा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर लो. सो आई विल जस्ट डिलीट दीस डॉट्स हियर. तो लेट्स ट्राई टू रन दिस. ओके. तो 0 1 2 3 सो ऑन. 10 प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज वी हैड अ कंटिन्यू स्टेटमेंट देयर. वैसे ही 20 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वी हैड अ कंटिन्यू स्टेटमेंट देयर आल्सो. 30 प्रिंट नहीं होगा बिकॉज वी हैव अ कंटिन्यू स्टेटमेंट देयर आल्सो. 44 प्रिंट हो गया. 45 पे पहुंचा, basically had this break statement, तो लूप हमारा ब्रेक हो गया एंड वी एग्जिटेड आउट ऑफ दिस लूप एंड देन वी एग्जीक्यूटेड जो हमारे लूप के बाहर पड़ा हुआ था, व्हिच वाज दिस फाइनल स्टेटमेंट, प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है. तो इसमें कुछ डाउट है किसी को? मैं चेक कर लेता हूँ. ओके, आई गेस नो डाउट्स. तो मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ या फिर आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तो आई होप इट इज द लैटर. ओके, ठीक है. सॉरी, वन सेकेंड. ठीक है, तो ठीक है. तो the next thing I would like to discuss is what is called a function. ठीक है, फंक्शन का थोड़ा इंट्यूशन देने के लिए what we will do is we will maybe look at something else first. ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं. So what we are thinking is कि आगे जाके after a couple of sessions we're going to give you projects which you can work on. And projects में कैसे we maybe I'm not sure about this, but maybe we can do it something like कि we will pair up two people at a time, like दो लोग एक साथ काम करेंगे, they will like work on the same project and we will randomly pair up two people, right? So we will have जो जितने भी students हमारे साथ registered है, we'll just randomly pick two people and make them into a single group and we can ask them to like build whatever project they want based on like whatever we have taught so far and they can submit that project, ठीक है. तो to do that I don't know if I can do this correctly, तो एक बार try कर लेते हैं. Okay, ठीक है. तो basically what I'm doing is I'm copying all the names here, okay. So this is an experiment for me as well. I have not tried this program before, but let's see if we are able to do this. तो मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसमें आपके सबके नाम प्रिंट कर लेता हूँ मैं. तो let us say print your names here. So this is all the people we have on the meeting with us. I just remove this co-host वाले नाम जो भी हैं. Second, ये नाम मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आपके. एंड आई विल रिमूव दीज होस्ट जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे कुछ लोग पड़े हुए हैं. तो what I want is that I want to convert this into a Python list because we have seen in Python we can use a list to collect different values and then we can like access those values. तो यहाँ पे क्योंकि multiple values I want to convert this into a list. तो मैं कैसे ये कर रहा हूँ, just ignore that for now. This might not be very intuitive, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, but ignore that. I will just convert it into a list in Python. Oh, sorry. Okay.
एक सेकेंड। ठीक है, so basically what I've done is that I have converted into a list of strings. ठीक है, I will copy this now into Python and यहाँ पे बेसिक तो इसको मैं नाम इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे ये पूरी सी लिस्ट पेस्ट कर दी मैंने। ठीक है, so it has all the students basically who are present in this meeting. एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज दैट आई वांट टू पिक टू पीपल आउट ऑफ दिस लिस्ट एट अ टाइम एंड क्रिएट अ ग्रुप फॉर देम। ठीक है, मतलब रैंडमली दो लोग चूज करने हैं मेरे को, who I will basically make a group out of, and उनको बताऊंगा मैं कि तुम दो प्रोजेक्ट साथ में करो। ठीक है, तो how do I do that? That is the question. So the first thing I have to do is I have to pick a random value, ठीक है, from this list. Now obviously आप इसका खुद कोड लिख सकते हो, like how do you pick a random value from a list, right? You can have some complex logic जो आप खुद implement करके you can write the code to pick a random value from this list. But the thing is, like, a lot of the functions, a lot of the operations that you want to do in Python, उसका कुछ ना कुछ किसी ने कोड लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, and because it is very frequently used, randomly कोई value choose करना is a very frequent operation जो कि हजारों लोग दिन में use करते रहते हैं. So it is basically something that Python directly provides. ठीक है, directly नहीं मतलब indirectly कहना चाहिए मेरे को, because directly there is no function like get random value, get random from list, ऐसा कोई function नहीं है directly in Python. But Python में एक मॉड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं, थोड़ी लंबी लिस्ट होगी, एक सेकेंड। ओके, हाँ, तो Python में एक मॉड्यूल होता है, एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें ना, इंपोर्ट रैंडम, तो दिस डूइंग दिस विल बेसिकली प्रोवाइड मी अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज और अ लॉट ऑफ functions basically which are related to random number generation or random selection and things like that. तो random values choose करना या फिर random number generate करना, उन चीजों के लिए this random module contains a lot of functions, a lot of possibilities to generate random values or collect random values. ठीक है, तो now what I want to do is कि I want to take this list of students and I want to randomly select one out of them. ठीक है, now उसके लिए कैसे करते हैं, I will actually, I'm not sure about how this works but I'll try. तो एक सेकेंड, I'm just trying it out. random dot sample बोलते हैं उसको, one second. I'm just trying it out एक बार, क्योंकि हाँ ठीक है। तो the function that we can use from random module to generate or like pick out two random values or n random values in general is something like this. तो random dot sample एंड फिर आप पहले लिखोगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेसिकली रिप्रेजेंट कि किस रेंज से, किस लिस्ट से आपको ये वैल्यूज निकालने हैं। सिंस इन दिस केस वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आई जस्ट राइट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कितने वैल्यू चाहिए। अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक पॉपअप आता है नीचे जो दिख रहा है ना आपको, इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स किस फंक्शन का काम क्या है। इट चूजेस के यूनिक रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन सीक्वेंस और सेट। तो जो हम पहले लिस्ट देंगे इसको, उसमें से के यूनिक एलिमेंट्स निकालेगा रैंडमली। ठीक है, तो इन दिस केस सिंस आई हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ 2 और पेयर्स ऑफ 2, तो आई जस्ट राइट 2 इन द सेकंड आर्गुमेंट। Sorry, what happened here? तो ऐसे, ठीक है, तो random dot sample list of students and 2, ठीक है, so this will basically pick 2 random values from this whole list। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, and now once you generate it, you want to store it in some other variable, तो let's say pair 1 कहता हूँ मैं इसको, pair 1, ठीक है, and then I will just randomly, I'll just print this pair 1, print pair 1, I'll run this, I'll see what happens, run. Okay, and Tabish and Fatima Ajaz, ठीक है, so this is like 2 random values which it picked. I'm very lucky, मेरा ही नाम उठ गया इस पूरी लिस्ट में से। एक बार फिर से रन करते हैं इसको। ठीक है, तो जाइम, गुलजार एंड मोहम्मद आसिम फॉर एग्जांपल, तो 2 रैंडम वैल्यूज उठा लिए इसने यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप एंड देन यू कैन रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स टू गेट लाइक अदर ग्रुप्स। बट इसमें एक प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, देर इज ऑब्वियसली द पॉसिबिलिटी कि सेम बंदे को 2-3 बार उठा लेगा, बिकॉज रैंडमली उठा रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि पहले ग्रुप में भी उसका नाम आ गया, दूसरे ग्रुप में उसका नाम आ गया, तीसरे में उसका नाम आ गया, बेसिकली एक ही बंदा मल्टीपल टाइम्स आ गया। सो दिस, आई विल लीव दिस अप टू यू टू फिगर आउट हाउ टू प्रिवेंट दैट। व्हाट वी वांट इज कि एक बंदा एक ही ग्रुप में हो, वी डोंट वांट दैट पर्सन टू बी इन मोर देन वन
groups. So if I try to run this program multiple times, right, I'm pretty sure कि मेरा नाम या किसी और का नाम it will appear in more than one group, which is not correct, right? You have to have कि एक person एक ही group में, but the current code will not allow you to do that. इसमें ऐसा हो ही जाएगा कि the same person will appear in multiple groups, ठीक है? तो how